Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 19 of Ledger Posting. We are at the end of the particular chapter. Only 2 or 3 sums are remain for this chapter. 2 is for journal and 1 is for cash book. I told you in last session, come with the journal. Maybe you have already completed the journal. If you didn't, let's see the entries which I already completed. So example number 14, from the following transactions pass journal entries in the books of Dharmendra and post them in ledger. Find out the balance of each account and decide which account has which balance. तो सिंपली हमने अभी तक जर्नल एंट्री कई दे दी है, आपको ये भी मालूम है हाउ टू गिव द जर्नल एंट्री. ऑल्सो we already find out the different type of the balances on the basis of the illustration, right? Maybe 15 or 16 type of the accounts were there in last illustration number 10, and we post different type of the entries in the ledger also. Here you have to just find out the balances on the basis of the journal entry, and then after you have to write down the particular amount at the end of the one account with the debit or credit balance. Okay, so let's start with the first one. 2016 July 1. Commenced the business by bringing in cash of rupees 80,000 and furniture of rupees 20,000. Common cash comes in, furniture comes in, owner, that is because he start the business, capital will be there. Let's see. Here it is. Example number 40. Journal entries of Sri Dharmendra, date 2016 July, debit credit. Cash account debited 80,000, furniture account debited 20,000, to capital account 1 lakh, being commenced a business with cash and furniture. So this is the common entry जो अभी तक हमने देखी है. Next one, entry number 2. Here it is. A bank account is opened by depositing rupees 30,000. Here bank is the receiver, cash goes out. Simple. Second one, bank account debited 30,000 to cash account 30,000, being cash deposited and opened account in bank. ये सिर्फ common entry है. Third one, goods of rupees 12,000 are purchased from Mahindra at 6% trade discount and paid cash rupees 4,000. If you have still problem in this type of the transaction, once again look after this one. It's a one type of the revision for you for the journal. So that's why 12,000 goods हमने purchase किए. Whenever this type of the more than 2 other accounts are there, okay, keep in mind if purchase है तो सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट करो, परचेस का ही अकाउंट डेबिट करो, बाकी सब क्रेडिट होंगे, राइट? जैसे कि क्रेडिटर का अकाउंट, जैसे डिस्काउंट मिलता है तो उसका अकाउंट, कैश डिस्काउंट होता है तो, और कैश या बैंक होती है तो. ओके, सो व्हेनेवर वी आर परचेजिंग द गुड्स एंड मोर देन 2 एंट्रीज आर ऑन द अदर साइड, अगर आप ऐसा ट्रांजेक्शन है तो देख लो, मोस्टली एक ट्रांजेक्शन ऐसा होगा ही होगा, राइट, कि जिसमें ऐसा होगा आप गुड्स परचेस करते हो, थोड़ी अमाउंट कैश से पे करते हो, थोड़ी अमाउंट बैंक के थ्रू देते हो, डिस्काउंट मिलता है, तो सभी क्रेडिट होगा, परचेस में सिर्फ परचेस डेबिट होगा. यहाँ हमने गुड्स परचेस किए 12,000 के, राइट, सो हियर इट इज गुड्स ऑफ रुपीज 12,000, राइट, उस पर हम 6% डिस्काउंट देते हैं. सी इट इज ट्रेड डिस्काउंट, इट विल बी नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दी आवर टोटल अमाउंट, राइट, दैट मीन्स इट इज नॉट शोन इन दी आवर अमाउंट, ओनली इट इज डिडक्टेड. सो मल्टीप्लाई बाई 6%, तो 720. अगर ऐसा नहीं करना है तो हमारा जो कॉमन हम करते थे वो -6%, तो 11,220. तो दिस अमाउंट विल बी देयर इन दी कॉलम, लेकिन उसमें से 4,000 हमने पे कर दिए कैश, राइट, सो सिंपली -4,000, 7,280. सो हियर वी पेड 4,000, रेस्ट अमाउंट अगेंस्ट द नेम ऑफ महेंद्र. तो गुड्स कैश कम्स, सॉरी, परचेस, that is goods comes in, purchase account debited, third date purchase account debited, right? So you can say against that one, name of the purchase 11,280. We gave the cash to cash account 4,000, and the remaining amount we find out, that is against the name of the creditor, that is Mahindra, because he is the giver of the goods to Mahindra account 7,280. So being goods purchased and paid rupees 4,000, you can write down more type of the narration, but for this chapter only small narration.
So see here, only one account is debited, that is purchase. All the other accounts, then 2 accounts are credited. अभी भी अगर कैश डिस्काउंट होता तो यहाँ हम लिखते टू डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट, 20 रुपीज़, तो वो भी आएगा. तो ऐसा ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट होता है, बाकी सब क्रेडिट होते हैं. लेट्स सी दी अदर वन. फिफ्थ वन, goods of rupees 7,500 are sold to Narendra at 10% trade discount and he has paid rupees 2,000. तो ये भी है हमारे परचेज कैसा हुआ. ओनली वन ट्रांजेक्शन इज देयर ऑन द ओनली वन अकाउंट इज देयर ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पर सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा, वो सेल्स का है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिवीजन टाइप है आपके लिए. रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स आ रहा है. जब एक से ज़्यादा डेबिट हो रहा है तो समझ लो कि कहीं से कैश आ रहा है, यानी पेमेंट वो करता है बंदा. तो ओनली वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, दैट इज सेल्स. ऑल द अदर अकाउंट्स विल बी डेबिटेड. यानी कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, राइट, और द नेम ऑफ द डेटर, और डिस्काउंट भी अलाउड. तो यहाँ पर है 7,500, 10% इजीली. 7,500 माइनस 10%, 6,750 रुपीज़ द अमाउंट विच द गुड्स विच सोल्ड. लेकिन उसमें से हमें 2,000 मिलते हैं, तो माइनस 2,000, तो 4,750 अगेंस्ट द नेम ऑफ द नरेंद्र. लेट्स सी, हियर इज द एंट्री ऑन द 5th date. Narendra's account debited 4,750. कैश अकाउंट, कैश कम्स इन, राइट, बिकॉज नरेंद्र इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो ये अमाउंट हमने उसको गुड्स बेचे, उसकी बाकी है, ये हमने रिसीव कर ली. टोटल गुड्स हमने बेचे टू सेल्स अकाउंट 6,750 के. हियर इट इज, being goods sold and received 2,000 rupees. Okay, that is the simple type of the information of this particular transaction. Okay, next one, 6th one, paid in cash rupees 3,000 for shop board and rupees 4,000 for advertisement in newspaper. Here two transactions are together. पहले हमने शॉप बोर्ड परचेस किया, वो लॉन्ग टर्म है तो उसको हम फर्नीचर में डालेंगे, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, वो एक कॉमन एक्सपेंस है. तो दोनों कैसे पेड करते हैं, लेकिन इसको साथ में नहीं लिखेंगे. कीप इन माइंड, बिकॉज एक फर्नीचर है, एक एक्सपेंस है, तो दोनों साथ में ना लिखो तो ही अच्छा है. ओके, सो लेट्स गिव द एंट्री सेपरेटली. 6th date, फर्नीचर कम्स इन, दैट इज शॉप बोर्ड 3,000 रुपीज़ डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, पैसे हम दे रहे हैं, राइट. तो 3,000 का जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, राइट. Here, see, okay, being paid for shop board by cash. 6th one, advertisement, that is expense. Okay, all the time expenses are always debited. Advertisement expense account debited 4,000 to cash goes out 4,000 being paid for advertisement. ये दोनों कॉमन एंट्री है, आपको मालूम पड़ गई होगी इजीली. नेक्स्ट वन, 7th one, paid life insurance premium of rupees 6,000 and son's school fees of rupees 2,200 from the shop. यानी हमारे बिजनेस में से हमने पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए हैं. एक मेरा प्रीमियम भरा है और एक मेरे बच्चे की फ़ी भरी है. सिंपल थिंग है, दोनों हमारे पर्सनल एक्सपेंस के लिए एक्चुअली ओनर के एक्सपेंस से लिए. तो दैट इज ड्राइंग. सो ड्राइंग इज़ वन टाइप ऑफ द पर्सनल एक्सपेंस, इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड. टोटल अमाउंट हम इसको साथ में लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर अमाउंट पेड विद द कैश. Okay, so drawing account debited 8,200 to cash goes out 8,200 being paid for life insurance premium and son's school fees. Next one, 8th one, given a check. यहाँ सेटलमेंट हो रहा है, देख लो. given a check of rupees 7,200 to Mahendra and settled his account. तो हमने महेंद्र से गुड्स परचेज किए थे 12,000 के, 4,000 उसको पे किए थे. यहाँ पर है, मेरी पेन देख रहे हो आप, राइट. तो उसको हमने जो भी अमाउंट पे करनी बाकी है 7,280, तो उसके सामने हमने उसको 7,200 दिया. 80 रुपीज़, दैट इज डिस्काउंट, क्योंकि हम अकाउंट सेटल करते हैं. अब डिस्काउंट हमने गुड्स परचेस किया था उसके सामने मिला है, दैट मीन्स इट इज़ बेनिफिट फॉर अस, इट इज़ इनकम. लेट्स सी. 8th one, महेंद्र इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट. टोटल उसको मिलेगा डेबिटेड 7,280 रुपीज़, राइट. मिलेगा तो उसको 7,200, लेकिन 80 रुपीज़ हमारे डिस्काउंट है तो उसके पास कम जाएगा. तो टू बैंक अकाउंट 7,200. आई थिंक चेक इज गिवन, दैट्स वाई. Okay, maybe yes, given a check. And last to discount received, because we received the amount, means we paid the amount of rupees 7,200. 30 rupees, that is income for us. तो that's why discount received account. अब और एक आज समझ लो बात कि अगर आप यहाँ टू डिस्काउंट अकाउंट लिखोगे तो भी वो सही है, राइट. क्योंकि जब डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही होता है. तो आप थोड़ा ट्रेन हो जाओ उस तरीके से कि रिसीव लिखना भूल जाना, आगे जाके सिर्फ डिस्काउंट लिखना है. हाँ,
कॉमन में अगर अभी आप 10th चैप्टर हमें चलाना है, जो ट्रायल बैलेंस है उसके हिसाब से रखो, उसके बाद जो भी आप एग्जांपल लो जब इन फ्यूचर है तो ध्यान रखना कि अब डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो इनकम ही होता है. सो दैट इज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट एंड सेटलमेंट ऑफ महिंद्रा. हियर रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹4700 फ्रॉम नरेंद्र इन फुल सेटलमेंट. एंड यहाँ हमने 5th डेट को नरेंद्र को गुड्स बेचा था, 2000 कैश की दी थी. ओके, 4750 हमको देना था. हमने दिया चेक, हमने रिसीव किया चेक 4700 का, यानी नरेंद्र ने हमको 50 रुपये कम दिए. दैट इज डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए एक्सपेंस है. लेट्स सी. बैंक इज द रिसीवर बिकॉज चेक मिल रहा है, टोटल 4700 का. डिस्काउंट अलाउड दैट इज एक्सपेंस 50 रुपीज़, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड टू नरेंद्र अकाउंट 4750 being received check against receivables. That's all. Last one. Purchase the furniture of ₹5,000 from Surendra Hardware. यहाँ हमने फर्नीचर परचेज किया है. एसेट कम्स इन, सुरेंद्र इज द गिवर, लेकिन अगेंस्ट दिस गिवन ₹3,000 बाई चेक एंड ₹2,000 इन कैश. तो सुरेंद्र गिवर हो रहा है, लेकिन यहाँ हम टोटल पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिटर रहता नहीं है. तो सामने आएगा बैंक इज द गिवर एंड कैश गोस आउट. लेट्स सी, हियर इट इज. 11th डेट फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बैंक अकाउंट 3,000 टू कैश अकाउंट 2,000. सो बीइंग पेड अमाउंट बाय कैश एंड चेक. ओके, सो आगे मैंने टोटल अप करके रखा था 1,72,510, उसको मैंने ब्लॉट डाउन किया, राइट, वहाँ कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ टोटल आ गया 1,80,260. बोथ द साइड आर आइडेंटिकल. So this is the information related to the journal. Now our main part of this chapter, that is ledger posting. अब लेज़र पोस्टिंग भी मैं कर ही देता, लेकिन कैश के ट्रांजेक्शन्स और बैंक के ट्रांजेक्शन्स थोड़े ज़्यादा है और मोस्टली हमारे बिजनेस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे. दैट्स वाई इट्स रिमेन, और मैंने उसको इसीलिए बाकी रखा है. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेज़र पोस्टिंग. ओके, सो आई विल स्टार्ट लेज़र पोस्टिंग इन द पर्टिकुलर नेक्स्ट सेशन. वहाँ पर भी हम उसको बैलेंसिंग भी कर देंगे. ओके, थैंक यू.